बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खुश तो आज होंगे आपके, आज तो आखिरी लेक्चर है। लेकिन खुशी के साथ गमी भी है कि जिन बच्चों के असाइनमेंट क्विज में नंबर कम आए हैं वो तो बात गुजर चुका है, अब तो वो नहीं बन तैयार हो सकते दोबारा। तो बच्चों अभी भी टाइम है, टर्मिनल में तैयारी करें और नंबर अच्छे ले सकते हैं। तो चलो जी आखिरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने आज का टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज़। हम टेलर सीरीज़ को देखेंगे कि वो किस तरह किस इंटरवल पे जो किसी फंक्शन पे कन्वर्ज होती है, और हम टेलर सीरीज़ को यूज़ करके हम मुख्तलिफ फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे। एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज फर्स्ट वन इज द कन्वर्जेंस प्रॉब्लम। रिकॉल दैट द nth टेलर पॉलिनोमियल फॉर ए फंक्शन f about x is equal to x naught has the property that its value and the values of its first and derivatives match those of f at x naught. As n increases, more and more derivatives match up, and so it is reasonable to hope that for values of x near x naught, the values of the Taylor polynomials might converge to the value of f of x, that is f of x is equal to limit n approaches to plus infinity summation k varies from 0 to n f of x naught, and k represents the kth derivative, our k factorial into x minus x naught power k. This is the Taylor series of some function f of x. However, the nth Taylor polynomial for f is the nth partial sum of the Taylor series for f. So the formula below is equivalent to stating that the Taylor series for f converges at x and its sum is f of x. सेम फार्मूला विच इज़ गिवन बिफोर। तो टेलर सीरीज़ जो है एक्चुअली टेलर पॉलिनोमियल्स है, उसमें क्या है कि टेलर सीरीज़ की जो n टर्म्स का सम है दैट इज़ ए टेलर्स पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं कि ये जो टेलर्स पॉलिनोमियल दैट एट x द फंक्शन f कन्वर्जेस एट x and sum is f of x and written in this way. The problem now we define a problem given a function f that has derivatives of all orders at x to x naught. Determine whether there is an open interval containing x naught such that f of x is the sum of its Taylor series about x is x naught at each number in the interval, that is f of x is equal to summation k is equal to 0 to infinity f of x naught with k derivative over k factorial into x minus x naught power k for all values of x in the interval. हमने पीछे जो दो स्लाइड्स में की है उससे हमें जो है जो डिफाइन किया, हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन की है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो फंक्शन जो है जिसके सपोज किए कि फंक्शन गिवन फंक्शन है उसके ऑल डेरिवेटिव्स एट एक्स एंड एक्स नॉट एग्जिस्ट करते हैं, और डिटरमिन करना है देयर इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट, कि ओपन इंटरवल है जिसके अंदर एक्स नॉट भी है, सच दैट एफ एफ एक्स जो है वो सम ऑफ टेलर सीरीज है अबाउट एक्स नॉट एट ईच नंबर इन द इंटरवल। ये उसका सम ऑफ द टेलर सीरीज दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल। सो वी से दैट फॉर सच इंटरवल सो दिस सम ऑफ द टेलर सीरीज एग्जिस्ट। So one way to show that this is true is to show that limit n approaches plus infinity f of x minus sigma k varies from 0 to n f of x naught with k derivative over k factorial x minus x naught power k is equal to 0. So it means that this is the original sum f of x and this is the approximated by the Taylor series. So the original sum, difference of the original sum and the approximate sum is 0. So
one way to show that there is no difference, there is no error mean. डिफरेंस या कहें एरर कह सकते हैं कि कोई एरर नहीं है. ये आपका ओरिजिनल सम था, एग्जैक्ट सम जो है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटेड सम बाय टेलर सीरीज, दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू 0, मीन देयर इज नो एरर. However, the difference appearing on the left side of this equation is the nth remainder for the Taylor series. Thus we have the following result. आपको पता है कि ये जो होता है, हमने टेलर सीरीज का जो रिमाइंडर टर्म लिखी थी, सो डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल सम यानी एग्जैक्ट सम माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सम दैट गिव्स इक्वल टू द रिमाइंडर. इट मीन्स इन दिस केस रिमाइंडर इज 0. So this result is written in the form of theorem. The equality f of x is equal to summation k is equal to 0 to infinity f of x naught over k factorial, and this is represent kth derivative into x minus x naught power k holds the number x if and only if limit n approaches to plus infinity or n x is equal to 0, or n x 0 means this is the remainder term. सो रिमाइंडर इज 0 इन दिस केस. ओके, जो हमने पीछे डिस्कशन की है उसको हमें थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया ये वाला. एंड नो द रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम. इफ द फंक्शन एफ कैन बी डिफरेंशिएटेड n plus 1 times on an interval I containing the number x naught, and if capital M is an upper bound for f of x with n plus 1 derivative, the absolute value of this on I, that is bounded का मतलब क्या होगा कि that is f of x the nth derivative n plus 1th derivative of f less or equal to m, absolute value of this कि n plus 1th derivative की जो absolute value है that is less or equal to m for some number m जो हमने m number है for all x in I. Then the absolute value of remainder less or equal to absolute value of remainder less or equal to m divided by n plus 1 factorial into absolute value of x naught x minus x naught power n plus 1. So for all in x. आप इस इनइक्वालिटी को देखें, ये बता रहा है कि जो n plus 1 डेरिवेटिव है x का, उसके ऊपर इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी दैट इज लेस आर इक्वल टू m. m कोई एक नंबर है, ठीक है. सो देन दैट इज कॉल्ड देन m इज कॉल्ड एन अपर बाउंड फॉर f. सो एंड देन द रिमाइंडर जो होगा rn plus 1 लेस आर इक्वल टू m over n plus 1 factorial x minus x naught mod और पावर है n plus 1 फॉर ऑल इन x. एग्जाम्पल है, हम देखिए अब इसको एग्जाम्पल को अप्लाई कर जो है ना, इसको इन जो टेलर सीरीज अभी हम देख रहे थे थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देखा है, रिमाइंडर थ्योरम दिखाते हैं रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम, और इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे बताएंगे कि रिमाइंडर हमने 0 कब होगा. ठीक है, हम तो पहले अप्रॉक्सीमेट करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को with the help of Maclaurin series. तो question example है, show that the Maclaurin series for cos x converges to cos x for all x, that is cos x is equal to summation k varies from 0 to infinity minus 1 power k x power 2k over 2k factorial is equal to 1 minus x square by 2 plus x 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial plus so on, and this is the interval is minus infinity to plus infinity. हमने बताना है कि ये cos x की जो ये मैक्लारन सीरीज है, हमने बताना है कि that is converges to x cos of x. ठीक है, मीन बताना ये है कि इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 0 बिकॉज देयर इज नो रिमाइंडर, ये बताना है. सो फ्रॉम थ्योरम 10.9.2 we must show that Rn x goes to 0 for all x as n goes to plus infinity. ये जो भी हमने रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम है उसकी बात हो रही है. ठीक है, वो कहता है कि Rn x
remainder goes to 0 for all x as n goes to plus infinity. For this purpose let f of x into cos x, हम f of x को cos x लेते हैं, so that for all x we have, इसके डेरिवेटिव क्या होगी cos x के, देखिए cos x से जो डेरिवेटिव होंगे, जो n+1 डेरिवेटिव, उनकी वैल्यू प्लस माइनस cos x होगी और प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है, दोनों में हो सकती है, क्योंकि आप देखिए अल्टरनेट होते हैं ना cos x डेरिवेटिव, तो एक होता है अगर एफ एक्स को cos x लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव साइन x हो जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x होगा, थर्ड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये देखिए प्लस, इसमें कौन कौन से दोनों आएंगे, कभी प्लस cos x आएगा, कभी माइनस cos x, और इस तरह कभी माइनस साइन एक्स आएगा और कभी प्लस साइन एक्स। तो ये अल्टरनेट ये चेंज होते रहेंगे सारे। तो इसलिए हम जो लिखते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव जो n+1 डेरिवेटिव लेंगे दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस cos ऑफ x और प्लस माइनस साइन एक्स, इस तरह की फॉर्म के होंगे। सो अगर देखा जाए तो cos x जो है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे अगर, देखिए cos x जो इसकी रेंज है -1 से +1 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी इसकी, जो एम्पलीट्यूड बनेगा 1 बनेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो cos ऑफ x की वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू cos ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू लेस और इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 होगी। इस तरह sin x जो है उसका भी जो रेंज है वो -1 से +1 है, तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो होता है sin x का वो 1 है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sin x क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू 1 होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू sin x दैट ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, मैक्सिमम केस क्या होगा 1 के इक्वल होगी, और बाकी 1 से छोटी हो सकती हैं, बड़ी नहीं हो सकती। सो वे हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। सो इन ऑल केसेस वी हैव n+1 एफ ये n+1 ब्रैकेट में लिखिएगा, इसमें मिस्टेक है। सो n+1 डेरिवेटिव जो है f ऑफ x लेस और इक्वल टू 1, यानी ये जो sin x है या cos x है दोनों। सो वी विल से दैट m इज इक्वल टू 1, तो इसका ये जो हमारे पास चूज कर लिया m जो होगा 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया कि साइन और cos की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसको हम m ले लिया 1, एंड x 0 इज इक्वल टू 0, x नॉट 0, क्योंकि ये मैक्लॉरेन सीरीज है और वहाँ पे x नॉट 0 होता है। टू कंक्लूड दैट 0 लेस और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r एंड x लेस और इक्वल टू 1 ओवर n+1 फैक्टोरियल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पावर n+1। तो ये देखिए ये कहाँ से आ गया, ये हमने पीछे भी किया है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। ये जो है यहाँ से रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम से, यहाँ से, तो ये m की वैल्यू पुट कर दी, x नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये जो रिमाइंडर ग्रेटर है इक्वल टू 0, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली है रिमाइंडर की, तो ये तो 0 ही हो सकता है, ये 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये आप इसको अब आप यूँ करेंगे कि इसकी लिमिट ले ले दोनों साइड्स की। However, it follows that limit n approaches to plus infinity 1 over n+1 factorial into absolute value of x power n+1 equal to 0. We know this from the formula we have seen in from one example in the book that, and from that example we have concluded one formula, that is limit n approaches to plus infinity x power n divided by n factorial is equal to 0. So I am going to write this formula over here. What was this one? So limit n approaches to plus infinity x mod n over n factorial is equal to 0. इस फार्मूले को यूज़ किया। अब अगर देखें तो यहाँ x की पावर n+1 है और नीचे n+1 फैक्टोरियल है, यहाँ x की पावर n था और नीचे n फैक्टोरियल था, तो दोनों सेम है। तो इधर इनकी लिमिट जब n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो ये 0 होगा। और इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो इनइक्वालिटी है, व्हेन n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, ओके। सो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन राइट, सो दिस इज एज, सो
दिस इनइक्वालिटी बिकम्स 0 लेस और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r n of x less or equal to 0 as n approaches to plus infinity. So by squeezing theorem, limit n approaches to plus infinity r n of x is equal to 0. हम स्क्वीजिंग थ्योरम से प्रूव कर दिया कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 व्हेन n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और यही हमने प्रूव करना था। आप अगर फिगर को देखें, आप राइट साइड के ऊपर फिगर है, अब ये ब्लू लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है y इक्वल कॉज x। इसका फार्मूला जो ग्राफ है, पोलिनोमियल जो बनती है मैक्लॉरेंस पोलिनोमियल, ये नीचे लिखी है p2n इक्वल टू समेशन k वाई फ्रॉम 0 टू n -1 पावर k x पावर 2k ओवर 2 फैक्टोरियल। ये मैक्लॉरेंस पोलिनोमियल है ऑफ cos x। अब देखिए जब n 0 होगा, n2 से n1 होगा, n1 लेंगे तो ये p2 बनेगी पोलिनोमियल। तो p2 को हम जब ड्रा करेंगे तो ये इस तरह की लाइन आ रही है, ये ब्लैक में शो की है, ग्रे कलर। और जब ये p4 होगी तो ग्राफ इसका यहाँ से तो मैच कर रहा है कॉस के साथ, यहाँ से आगे फिर डाइवर्ट हो जाता है। अगर हम जब p6 लेंगे, p6 में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो देखिए ये जो ग्राफ है स्टार्टिंग में तो मैच कर रहा है कॉस एक्स से, यहाँ से आके ये फिर डाइवर्ट हो रहा है। फिर आप देखिए अगर p8 लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास जो देखें ये ग्राफ मैच करता करता यहाँ से जाके यहाँ से आगे जाके डाइवर्ट हो रहा है। अब अगर आप देखें कि जो हम नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो अप्रॉक्सीमेशन है मैक्लॉरेन सीरीज से, वो एग्जैक्ट जो ग्राफ है कॉस एक्स का उससे मैच करती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब जब ये होगा, ये इन्फिनिट होगी टर्म्स, तो दिस विल बी एग्जैक्टली मैच विद द ग्राफ ऑफ cos x. See one more example. Use the Maclaurin series for sin x to approximate sin 3 degree to 5 decimal point accuracy. अब मैक्लॉरेन सीरीज साइन एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज वो इस फॉर्म की होती है, हमने पहले की हुई है, तो उसका फार्मूला लिख लिया। अब x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। जो 3 डिग्री है वो रेडियन जो है, हमने एंगल जो अज्यूम करेंगे रेडियन में, तो 3 डिग्री को लिख सकते हैं रेडियन की फॉर्म में π/60। सो 3 डिग्री इज इक्वल टू, सो साइन 3 आप इसमें पुट करें, x का साइन ये x जगह π/60 पुट कर दें, तो साइन 3 डिग्री को साइन π/60, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे π/60 माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह π/60 पुट करेंगे, तो π/60 का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, देन प्लस x पावर 5, तो π/60 पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस x पावर 7 है, तो π/60 पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टर्म जा रहे हैं। तो ये थी मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ साइन 3 डिग्री। तो हमने इसको बताना है एक्यूरेसी टू 5 डेसिमल पॉइंट तक, कि कितनी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हम कितनी लेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी 5 डेसिमल पॉइंट तक आ जाए। सो ये अगेन दोबारा वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो पीछे लिखा था, साइन 3 डिग्री या साइन π/60 की बात करें दोनों, तो ये एक्सप्रेशन है मैक्लॉरेन सीरीज है इसकी। सो वी मस्ट नो डिटरमिन हाउ मेनी टर्म्स इन द सीरीज आर रिक्वायर्ड to achieve 5 decimal place accuracy. So we have 2 choices. देखिए हम जो है ना 5 decimal जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट लेना है हमने कि वो 5 decimal place तक एक्यूरेट है, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक रहता है रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम मेथड, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि फॉर 5 decimal place accuracy वी नीड रिमाइंडर एट x इक्वल टू π/60, ये x की वैल्यू π/60 लेस और इक्वल टू 0.000005, तो ये 5 0 के बाद 5, तो इसका ये जो रिमाइंडर है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वन। अगर ये होगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट होगा अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक, और ये हमने अचीव करना है। तो हमने देखना है कि n क्या होगा,
कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कि ये अचीव हो जाए। हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, देन एफ एक्स इज आइदर द एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन डेरिवेटिव क्या होंगे, प्लस माइनस कॉस एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स, यानी एन इसके nth डेरिवेटिव जो होंगे एन प्लस वन डेरिवेटिव प्लस माइनस साइन एक्स। यानी जैसे आप जो है आपने कॉस एक्स की जो मैग्नेटिक पॉलिनॉमियल्स लिखी थी उसमें भी देखा था कि जब उसके डेरिवेटिव लेते थे तो वो अल्टरनेट आते थे, कभी आता है प्लस साइन एक्स आ गया, कभी माइनस साइन एक्स आ गया, कभी प्लस कॉस एक्स आ गया, कभी माइनस साइन एक्स। तो जब साइन एक्स के डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इसी तरह के आएंगे, ठीक है, वो कॉस और साइन आएंगे प्लस माइनस के साथ। तो इस तरह के हम दे रहे हैं, कहते हैं जो एन प्लस वन डेरिवेटिव होंगे वो प्लस माइनस कॉस एक्स होंगे या प्लस माइनस साइन एक्स होंगे। सो इन आइदर केस, सो द वैल्यू ऑफ द एन प्लस वन डेरिवेटिव विल बी लेस आर इक्वल टू वन, क्योंकि ये कॉज और साइन फंक्शन है, और कॉज और साइन फंक्शन बताया आपको इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, वन होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू वन होगी। सो इस लिहाज से हम m चूज कर सकते हैं, कैपिटल M 1, x पाई बाई 60 हो गया, x नॉट 0 है, सो वी हैव जहाँ पे r ये फार्मूले से हम पाई बाई 60 पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल लेस आर इक्वल टू 0.0005 लेस ओके 0.000005। सो हम यहाँ तक पहुँच के अब हमने इसके देखना है कि n क्या होगा, ठीक है जी, n क्या होगा वो देखना है हमने। तो हम n को देख लेते हैं जी, कैसे देखेंगे, n को हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी, हमने कैलकुलेशन करनी है। बाय कैलकुलेशन वी कैन सी दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड। एक तो ये है कि आप n की वैल्यू रखें 1 2 3 रखें, तो आपके पास आप लेफ्ट हैंड साइड आप कैलकुलेट करते जाएं और आपको पता चलेगा कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करती है। सो इट कैन वी कैन राइट इन दिस वे, सो इट कैन बी वेरीफाइड that for n is equal to 3 we achieve the required accuracy thus sin 3 degree is equal to पाई बाई 60, जिसे अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट है जी, तो अप्रॉक्सीमेट पाई बाई 60 माइनस पाई बाई 60 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। और जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.05234, तो ये आंसर आएगा। और कैलकुलेशन से आप जो अगर कैलकुलेट करें साइन 3 डिग्री तो वो हमारे पास आएगा कैलकुलेटर गिव्स sin 3 degree is equal to 0.05233595624। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से sin 3 डिग्री की वैल्यू दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट दिस वन आप, ठीक है। तो आप देखें दोनों में मैच करें, दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है अल्टरनेट सीरीज टेस्ट। अल्टरनेट्स सीरीज टेस्ट,
साइन, आप देखें साइन 3 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू π/60 माइनस π/60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस π/60 पावर 5 फैक्टोरियल माइनस π/60 पावर 7 और 7 फैक्टोरियल प्लस 1। इसमें देखिए आपकी टर्म्स क्या आ रही हैं, अल्टरनेट आ रही हैं प्लस माइनस के साथ। ठीक है जी, अब आप इसको लेट हम करते हैं जी, लेट एस एन डिनोट दी सम ऑफ टर्म्स up to nth power of π/60। अब देखिए जो एक्सपोनेंट आ रहा है हर टर्म का, साइन 3 में देखें आप देखिए साइन 3 डिग्री में जो राइट हैंड साइड के ऊपर एक्सप्रेशन है उसमें जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है हर एक की क्या आ रही है, वो ऑड नंबर आ रही है, 3, 5, 7, 9 इस तरह की होगी सारी जी। साइन जो लेफ्ट साइड के ऊपर सीरीज है उसके एक्सपोनेंट क्या आ रहे हैं, वो ऑड पावर्स आ रही हैं। ठीक है जी, ये पावर्स ऑड हैं, इसका मतलब n जो है, जो हमने एस एन लिखा है, n भी इसका मतलब ऑड होगा। तो जो हम n के बाद वाली जो टर्म आएगी वो क्या होगी, फिर n+2 बनेगी, क्योंकि आठ है ना, दो का डिफरेंस आ रहा है, n आठ है तो +2 करेंगे तो फिर वो एक आठ पावर बनेगी। तो हम जो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो जो हमारे पास जो टर्म होगी फिर Sn के बाद, यानी An के बाद, An क्या है, An के बाद टर्म कौन सी, An+2 बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि n जो है ऑड है और अगला 8 कैसे बनेगा, 2 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो हम इसको लिखते हैं जी, सिंस द एक्सपोनेंट in the series are odd integers, the integer n must be odd। So this is theorem by theorem 10.6.2। बुक के अंदर ये थ्योरम है 10.6.2। आपको लेक्चर में भी मैंने लिखवाया है, थ्योरम नंबर नहीं है लेकिन आपको थ्योरम की स्टेटमेंट बताई हुई है कि इसमें बताया कि उसके रूल से कि अगर कोई सीरीज़ है उसका सम s है, हम उसकी जो n फर्स्ट n जो टर्म्स है उसका सम ले, उसका डिफरेंस जो होगा दैट इज लेस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस इज लेस देन an+1। an+1 जो लेस देन होगा नेक्स्ट टर्म, क्योंकि n तक तो टर्म्स हमने ऐड कर दी, n जो nth टर्म के बाद कौन सी टर्म आती है, n+1, तो जो इनका सम का डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन n+1। तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए जो s हमने इस सीरीज़ में जो हमें जिसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमने कहा Sn जो डिनोट कर रहा है फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, चूँकि n ऑड है तो अगली टर्म क्या होगी, n+2 बनेगी, तो वो क्या बनेगी, an+2। सो अब इसमें देखिए s इसके इक्वल टू साइन 3 डिग्री और Sn हमने किया है, Sn हमने किया कि फर्स्ट n टर्म्स का सम है। ठीक है, और हमारे पास an+1 क्या बनेगी, जो इसके बाद वाली टर्म है, यानी वो n+2 बनेगी ना। ठीक है, तो वो नेक्स्ट बनेगी, तो हम इसको थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देयरफॉर साइन 3 डिग्री माइनस Sn mod लेस देन
पाई बाई 60 पावर n+2 डिवाइडेड बाई n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, चूँकि जो ये nth टर्म जो बनेगी, n टर्म के बाद जो अगली टर्म आती है ये उसकी पावर n+2 बनेगी। ठीक है, n+1 जो टर्म होगी, तो ये हमारी टर्म उस कहाँ से आती है, जो सीरीज़ है साइन 3 डिग्री की मैक्लारन सीरीज़, उससे आती है कि जो nth टर्म है उसके बाद जो टर्म बनती है वो ये होगी। तो ये an+1 टर्म बनती है। हमने थ्योरम को अप्लाई कर दिया 10.6.2 को। So it means for the required accuracy five decimal place we have pi by 60 power n+2 divided by n+2 less or equal to 0.005 times 0 and 5। सो हमने इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। हमने कैसे सॉल्व करना है, n की वैल्यू पुट करें 1 2 3, तो आप देखें आपके पास ये इनक्वालिटी देखना कहाँ तक होल्ड करती है। तो n हम उसी बाई कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हम देख सकते हैं कि n होगा 3 होगा इसमें भी। सो इट कैन बी वेरीफाइड। That holds for n is equal to 3। और ये ऊपर वाली इनक्वालिटी जो होल्ड करती है n is equal to 3 के लिए आपने कैसे करनी है, कैलकुलेशन से करनी है। n को 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, 4 रखेंगे, आपको पता चलेगा 3 तक होल्ड करती है। तो आप कैलकुलेशन से करेंगे और कोई मेथड नहीं है। दिस एग्रीज विद द रिजल्ट obtained by using remainder estimation theorem। Let's take one more example. Show that the Maclaurin series for e raised power x converges to e raised power x for all x. That is, this is the Maclaurin series of the exponential function e raised power x है। इसकी Maclaurin series क्या है कि 1 plus x square by 2 factorial and plus so on x power k over k factorial plus so on, और डोमेन इसकी है -infinity to +infinity के लिए। ये हमने Maclaurin series ऑलरेडी हमने डेराइव की हुई है। अब हम इसको देखेंगे ये कन्वर्ज करती है इस फॉर एक्स के लिए कि नहीं। तो इसको इन्हीं लाइंस के ऊपर करेंगे जैसे अभी हमने किया है। रिमाइंडर समेशन थ्योरम अप्लाई कर दें। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स। इसका जो भी डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, यही बनेगा। तो इसकी n+1 जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या बनेंगे, इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स। तो n+1 डेरिवेटिव यही बनेंगे। तो इसकी x इक्वल 0 के ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। टू शो दैट Rn of x goes to 0 as n goes to +infinity, all x in -infinity +infinity। इस इंटरवल को तमाम x जो हैं
हमने प्रूव करना है कि रिमाइंडर जो इज इक्वल टू इज 0 व्हेन n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। सो हम इसको शो करते हैं। देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू को अलग से शो करेंगे, नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग से शो करेंगे। सो वी शैल शो दैट फॉर x lesser equal to 0 and x greater 0, ओके शो इट कर दे, दैट कर दे। हम ये जो प्रूफ करेंगे रिमाइंडर को 0 प्रूफ करेंगे, शो करेंगे रिमाइंडर अप्रोचेस 0 व्हेन x n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। सो आप देखें सिंस जो nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव n plus 1th derivative is equal to e raised power x है, और this is an increasing function, is increasing function, then we can write, okay, increasing function है f n plus 1 at any number point c, magnitude less or equal to f n plus 1 at 0, and this is equal to e raised power 0, this is equal to 1 for c belonging to x0 इस इंटरवल पे ऊपर, ठीक है। ये कौन से सारे नेगेटिव x होंगे, c बिलोंग टू दिस वन, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n plus 1th डेरिवेटिव एट सम पॉइंट c is less or equal to, so n plus the absolute value of the n plus 1 derivative of f at some x is equal to e raised power x for c belong to 0 to x। यहाँ पे c सारे पॉजिटिव है 0 से x, so we can apply remainder estimation theorem with capital M is equal to 1 in the case where x less than equal to 0 and with capital M is equal to e raised power x in the case where x greater than 0। अब हम देखिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं दोनों के लिए अलग अलग। सो 10 0 लेस और इक्वल टू और एन ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू x mod n plus 1 over n plus 1 factorial। so this is if x less or equal to 0। यहाँ m की वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम जो है उसकी इनइक्वालिटी है वो वहाँ से दी गया। सो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इन द अदर केस 0 less or equal to or n of x less or equal to e raised power x absolute value of x e power n plus 1 over n plus 1 factorial if x greater than 0।
दोनों के लिए अलग सा। अब जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो ये जो होगा ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये जो है ये वाली पार्ट दैट विल बिकम ज़ीरो, और ये जो नीचे है ये भी ज़ीरो हो जाएगा व्हेन n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी होगा। So taking the limits both sides, so 0 less or equal to limit n approaches to plus infinity or n of x is less or equal to limit n approaches to plus infinity x n plus 1 mod over n plus 1 फैक्टोरियल। ये जो पहली इनइक्वालिटी है फॉर x जो है ये कौन सा था, इफ x लेस और इक्वल टू 0 के लिए, तो ये बनेगा 0 लेस और इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और n ऑफ x लेस और इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगी। सो बाय सिक्वेंसिंग थ्योरम, सो इट मीन्स दैट लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और एन एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमने जो सिक्वेंसिंग थ्योरम से रिमाइंडर समेशन थ्योरम से प्रूफ कर दिया कि जो रिमाइंडर है 0 है, तो अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर जो अप्रॉक्सीमेशन है, जो मैक्लॉरेन सीरीज है, दैट कन्वर्ज टू द e to the power x. So we can say the Maclaurin series of e to the power x converges to the e to the power x. And similarly we can show that for x greater than 0 limit n approaches to plus infinity और एन एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल नई लाइन्स के ऊपर करेंगे तो आप ये भी शो कर सकते हैं। दूसरा फॉर एक्स ग्रेटर 0 के लिए प्रूव कर सकते हैं कि रिमाइंडर जो है इज 0 व्हेन एन अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। Thus we have proved that the Maclaurin series for e to the power x converges to e to the power x for all x। आप कोई इस तरह लॉगरिथमिक फंक्शन लेके उसको भी कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज लिखी है उसकी, और उसको भी आप कन्वर्ज कर सकते हैं, इस तरह बता सकते हैं। सो हमने कुछ काम हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया, एक्सपोनेंशियल का किया, और अब आपने लॉगरिथमिक फंक्शन का आप खुद देखिए उसको कैसे करेंगे। एग्जैक्ट तीन ही लाइन्स के ऊपर करेंगे, उसकी मैक्लॉरिन सीरीज लिखेंगे, फिर आप देखेंगे रिमाइंडर समेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे और आप रिमाइंडर प्रूव करेंगे इज इक्वल टू 0 व्हेन n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द बायनॉमियल सीरीज। हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे जी, इफ m इज ए रियल नंबर देन द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर 1 प्लस एक्स पावर m is called the binomial series. It is given by 1 plus mx plus m into m minus 1 over 2 factorial x square plus m into m minus 1 into m minus 2 over 3 factorial x cube plus so on m into m minus 1 into m minus k plus 1 over k factorial into x power k plus so on। आप देखिए कि ये दो टर्म्स है, इसे बायनॉमियल सीरीजली कहते हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 1 है और x है। तो पहली टर्म हमेशा 1 होगी, इसकी पहचान, इसकी पावर m इज एनी रियल नंबर, ये इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात। तो ये कोई भी नंबर है, जब उस तरह होगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस mx
और ये देखें दूसरी टर्म क्या आती है m इंटू एम माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। मैच करें टर्म्स की, देखें रिलेशन किस तरह होगा कि ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल नीचे आ रहा है और m माइनस वन है दो टर्म्स। यहाँ दूसरी टर्म में देखें एक्स क्यूब है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है और ऊपर जो है m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू। तो इस तरह आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी इसकी। इन द केस वेयर m इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर द फंक्शन f of x with 1 plus x power m is a polynomial of degree m. So f m plus 1 0 is equal to 0। अब कहता है कि ये पोलिनोमियल बनेगी डिग्री n की और इसके जो डेरिवेटिव होंगे ऑब्वियसली पोलिनोमियल बनेगी डिग्री और इसके जो डेरिवेटिव होंगे m प्लस वन एम प्लस टू और सो ऑन डेरिवेटिव वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। बिल्कुल सही है क्योंकि देखें m की जगह देखें फर्स्ट करें ये 2 हो तो स्क्वायर हो गया ना, तो ये ओपन करेंगे तो ये तो एक स्क्वायर पोलिनोमियल बनेगी सेकंड ऑर्डर की। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव लेकिन थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। आप इसको चेक कीजिएगा, m की पावर 2 रखें, इसको स्क्वायर ओपन करें, फिर इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट लें सेकंड लें, देखेंगे थर्ड डेरिवेटिव 0 होता जाएगा। तो m2 के बाद यानी 3 जब होगा तो वो डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, उसके बाद सारे डेरिवेटिव 0 आएंगे। तो एग्जैक्टली सेम हेयर द बायनॉमियल सीरीज रिड्यूस टू द फेमिलियर बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो कहता है बायनॉमियल सीरीज जो है वो बायनॉमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी और जिसकी फॉर्म बनेगी ये वाली और आखिरी टर्म बनेगी x की पावर m। ये ऐसे ही ना जैसे a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी क्यूब है, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5 है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन बन जाएगी। So it can be proved that if m is not a non-negative integer, then the binomial series converges to 1 plus x power m if mod of x less than 1. Thus for such values of x, 1 plus x power m is equal to 1 plus mx plus m into m minus 1 over 2 factorial x square plus m into m minus 1 into m minus 2 over 3 factorial into x cube and plus so on, and this is the kth term plus so on। So इसकी भी इन्फिनिट मैनी टर्म्स होंगी और इसको हम सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स पावर m इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म प्लस 1 एज इट इज प्लस बाकी जितनी टर्म्स हैं हम उनको ये जनरल टर्म यहाँ से ये उठा लें, ये इधर लिख दी जनरल टर्म और समेशन k वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कर दें, मॉड ऑफ x लेस देन 1 बिकॉज ये कन्वर्ज करेगी मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए। तो ये कन्वर्जेंस हमें पता है कैसे चेक करते हैं, तो आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। रेशियो टेस्ट लेके हम देखते हैं कन्वर्जेंस और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो हम इसको यहाँ तो वही नहीं चेक करें लेकिन ये अंडरस्टूड है, हमें पता है कि इसकी जो ये सीरीज़ है दैट कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1। सो हम देखते हैं इसको 1 प्लस x की पावर -2। आप देखें m यहाँ पे क्या है -2 है, इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस x की पावर -2 को बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंशन। तो इसके सीरीज की पहली टर्म क्या होती है 1, दूसरी होती है m इंटू एक्स, m आपका है -2 और x आ गया प्लस उसके बाद है m -2 है, फिर होता है m -1, m इज -2 and -1 over 2 factorial and x square प्लस थर्ड टर्म होती है m -2 है, फिर क्या होता है m -1 यानी -2 -1, फिर होता है m -2, तो m है -2 और फिर -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सिंप्लीफाई करें 1 -2x, ये दूसरी टर्म ये 2x और मल्टीप्लाई हो जाएंगे -2x हो गया और प्लस अगली देखें ये -2 आ गया, उसके बाद क्या है -2 और -1 ऐड हो रहे हैं -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अगली देखें ये -2 है पहली ब्रैकेट में, तो -2 के एज इट इज रख दें, -2 इंटू -3 क्या होता है -3, उसके बाद आ रहा है
4/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 3 फैक्टोरियल है 3 2 1 और इधर आ जाएगा x³ देन प्लस सो ऑन। तो अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस और कैंसिल नहीं हो रहा, -1 और -3 मल्टीप्लाई के +3 बना देंगे और ये ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे। तो हमारे पास तो ये बनेगी 1 - 2x, ये -1 और -3 क्या होंगे मल्टीप्लाई होके +3x²। अगली टर्म देखें ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू -4 -4 हो जाएगा, -4x³ + 1। तो हमने देखे बायनॉमियल सीरीज से 1 + x⁻² को एक्सपेंड कर दिया। तो इसकी टर्म्स आएगी 1 - 2x + 3x² -4x³ एंड +1। इस तरह आप सारी टर्म्स लिख सकते हैं, बहुत सारी टर्म लिख सकते हैं, ये इन्फिनिट तक जाएंगे। अब जबकि दूसरा जो एग्जांपल थी बी पार्ट था 1/1 + x²। इसको लिख सकते हैं कि 1/1 + x⁻1/2, ये किसके इक्वल होता है 1 + x⁻−1/2। तो हमने एक्सपेंड करना है तो m यहाँ पे हो गया जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है 1 + x⁻−1/2। तो आपने इसको ट्राई करना है जी, खुद करना है इसको। इसकी एक्सपेंशन m की जगह -1/2 रखते जाएं, फार्मूला लिखें 1 + x⁻m वाला, जहाँ m नज़र आए वहाँ m की जगह -1/2 रखते जाएं और कुछ काम ना करें, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। दोबारा बताता हूँ क्या करना है। आप 1 बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला लिखें और जहाँ पर m आता है उसमें m की जगह -1/2 रखते जाएं, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करने, यू विल गेट द आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल ये करना। तो बच्चों आज का लेक्चर भी इख्तिताम हो गया, बल्कि लेक्चर नहीं इख्तिताम हुआ, आज हमने अपना कोर्स भी ख़त्म कर दिया 32 लेक्चर्स में, और काफ़ी हेक्टिक था। कुछ लेक्चर में काम ज़्यादा हुआ, कुछ में कम हुआ, कुछ मुश्किल लगे होंगे टॉपिक, कुछ आसान, लेकिन होपफुली कि आपने एंजॉय किया होगा इसको। और बच्चों अपनी तैयारी करनी है टर्मिनल की। बच्चों पढ़ने गए थे तो गुजारा नहीं होगा, पढ़ना है तो तभी मार्क्स आएंगे। तो इंशाल्लाह जी देखते हैं टर्मिनल में आप क्या करते हैं, आपकी कारकर्दगी कैसे होती है और आपने कोर्स को कितने हद तक सीरियस लिया है। तो बच्चों मैं अब इजाज़त चाहूँगा परमानेंटली आपसे। अब आपने खुद पढ़ना है, तो देखते हैं आप एग्ज़ाम में आप क्या परफॉर्म करते हैं। तो मुझसे इजाज़त। और कोई आपसे समझ ना आई हो बात तो आप मुझे डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है tanveer.akbar@comsats.edu.pk। इस आप एड्रेस के ऊपर ईमेल करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।